So we have discussed due to COVID and lockdown, schools has to face a lot of challenges, and basically teachers and parents as well. So what are the solutions which schools are using to basically overcome these challenges, like conducting live online classes and taking fees from parents and all these things. So these solutions are basically Zoom, Google Meet, Gmail, WhatsApp, and all these things. But managing things using these solutions is not that easy and convenient, because every time the complete class needs to be intimated about the live session, and it's about homework, how the homework can be shared, how the homework reply can be retrieved from the students, and all these stuff. So we have created solutions regarding that in our Vanija app that I'll be discussing in a short while from now. So basically, as you can see on the PPT, these are the 6 main problems which we have found, which schools were finding. And if you have any other problem, then you can just comment and let us know, and we'll definitely be working about that. And similarly, as I talked, that parents are also having the problem. It's not only teachers or school, but parents also have a lot of problem in taking these live online sessions. Somewhere electricity must be missing, or internet must not be there, or with small students the availability of the parent constantly with them is again a problem. तो इसके अलावा और होमवर्क किस तरह से लिया जाए, किस तरह से उसको सबमिट किया जाए, और अगर बच्चे को कोई क्वेश्चन हो सेशन के बारे में जो कि एक एक्चुअल क्लास में वो आफ्टर क्लास भी पूछ सकता था, या फिर स्कूल टाइम में कभी भी पूछ सकता था, वो पूछने की भी एक समस्या है. So all these things we have acknowledged, and we have tried to bring some solution for that, and we are further working more to bring more seamless, more better solutions, क्योंकि ये आप ही लोगों का सॉल्यूशन है, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं उसके बेसिस पे हम पिछले 2 साल 2.5 साल में इसको डेवलप कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली ये सॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, द साइज ऑफ द सॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड 4 times. सो वी हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट. और अभी इस लॉकडाउन और कोविड टाइम में हमने कुछ चीजें बहुत फास्ट रैपिड रेट पे इसके अंदर डेवलप की हैं, और आगे भी हम कुछ चीजें इसके अंदर प्लान कर रहे हैं. So what solutions we are providing in Vanijya app? Basically we have divided it in 3 parts. 3 parts में हमने इसको divide किया. First thing is Vanijya school app. So that is a complete school management system, right? So what is in that complete school management system? It's having access of 50 staff, 50 staff including admin के आप logins create कर सकते हो, जो कि complete right based है. आप हर एक को जो right दोगे वही चीज उतनी वो operate कर पाएगा, और जो कि entirely flexible है, आप कभी भी उसको change कर सकते हैं. दूसरा, आप इसके अंदर लाइव ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर सकते हैं यूजिंग यूट्यूब. और अभी हम इसके अंदर एक नया फीचर और लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर कुछ आपको, जैसे आप जूम से क्लास कंडक्ट करते हो उस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जिसमें आप 2 वे बात भी कर पाओगे, वीडियो भी देख पाओगे. ऑल्दो दिस इज एन वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. जूम आपको फ्री देता है, बट डेफिनेटली दे आर अर्निंग एट सम अदर पॉइंट. बट हम उसको अभी करेंटली इस साल के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री देंगे. ड्यू टू कोविड एंड ऑल हम उसको फ्री दे रहे हैं, और ये अभी बीटा मोड के अंदर इसके अंदर आ जाएगा जल्दी. तो एक बार ये आ जाएगा तो आप लोगों को इंटीमेट हो जाएगा. उसके अलावा भी यूट्यूब वाला ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. यूट्यूब वाले ऑप्शन के अंदर एक फायदा ये है कि अगर आप लाइव नहीं जाना चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड सेशन डालना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड सेशन को आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दें डिसेबल्ड मोड में, जो कि किसी को भी नहीं दिखेगा. अनलिस्टेड मोड उसके अंदर होता है, उसमें किसी को भी आपके चैनल पे कुछ नहीं दिखेगा. और उसके बाद उसको आप अपने इस ऐप में, वाणिज्य ऐप में शेड्यूल कर सकते हैं उस टाइम और डेट पे. तो जो स्टूडेंट है उसको यही लगेगा कि वो लाइव है, उसको ये नहीं लगेगा कि वो लाइव सेशन नहीं वॉच कर रहा है. उसको जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि इट्स नॉट 2 वे इंटरेक्टिव. सो दिस इज हाउ फ्यू स्कूल्स आर फॉलोइंग इट, और वो काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि एवरी टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि आप लाइव हो या टीचर लाइव हो. अगर आप हो सकते हैं देन इट्स गुड. इसके लिए भी हमने इसके अंदर यूट्यूब में ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर आप यूट्यूब लाइव के थ्रू लाइव जा सकते हैं. अदरवाइज हम एक और सोल्यूशन ला रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप होमवर्क दे सकते हैं और उसके रिप्लाईज भी आपको मिल जाएंगे. उसके अलावा आप स्टूडेंट्स को नोटिस दे सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स को एक बार में पूरी क्लास को, जो कि आपके ऐप में या फिर जो वेबसाइट हम इसके थ्रू दे रहे हैं उसमें मिलेगा. ऑनलाइन फीस कलेक्शन कर सकते हैं, और कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम तो इसके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि जब भी आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, आप करेंटली भी अटेंडेंस मैनेज करना चाहते हैं या और भी स्कूल के जितने भी अफेयर्स मैनेज
करना चाहते हैं वो आपके इससे मैनेज हो जाएंगे। दूसरा इसका पार्ट है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऐप, जिसके अंदर अगेन एक मोबाइल ऐप भी है और इसके अंदर एक वेब व्यू भी है। सेम चीजें हैं दोनों केस में, सेम तरह से दोनों के अंदर लॉगिन होता है और वेब व्यू भी इसके अंदर दिया गया है। इसीलिए उसका मेन रीजन ये था कि बच्चे जब पढ़ते हैं लाइव ऑनलाइन तो मोबाइल की छोटी डिवाइस पे उनकी आंखों में स्ट्रेन आता है और बहुत से पेरेंट्स वो नहीं चाह रहे हैं। तो जिनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर अवेलेबल है, जो कि ज्यादातर होता है, तो वो इजीली वेब व्यू के थ्रू जो है बच्चे को पढ़ा सकते हैं एक लार्जर स्क्रीन पे लार्ज बड़ा दिखाते हुए, रेदर देन मोबाइल। तो मोबाइल ऐप भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट हो उस तरह से कर सकता है। और आपको इसके अंदर कभी भी एसएमएस परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एसएमएस या इस तरह की चीज जो भी आप करते हैं उनकी आपकी कॉस्ट जीरो हो जाएगी और आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे कोई भी चीज पेरेंट से, जो भी चीजें आप इसमें कर रहे हैं, और पेरेंट को ज्यादातर इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इसके अंदर आप जो पेरेंट है वो फीस पे कर सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, होमवर्क उसको दिख जाएगा, चाहे वेकेशन का हो चाहे डेली होमवर्क हो, उसका रिप्लाई कर सकता है, लाइव क्लास अटेंड कर सकता है, रीवॉच कर सकता है सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, और क्वेश्चन पूछ सकता है ड्यूरिंग लाइव सेशन, और उसके अलावा आंसर भी उसको उसके अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह के इसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज हमने दी हैं। सिमिलरली इसकी एक डायनेमिक वेबसाइट है जिसके अंदर आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। उसके अंदर एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, उस एडमिशन फॉर्म से पेरेंट जो है उसको फिल कर देगा, उसके बाद आपके पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी। अगर आप उसको एडमिशन करना चाहते हैं आफ्टर कॉलिंग द पेरेंट, क्योंकि एक बार बात जरूर करेंगे, ऐसे तो आप एडमिशन नहीं देंगे, तो आप एक बार उससे बात कर लेंगे फोन पे और उसके बाद वो चीज आप एडमिशन में स्विच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद पेरेंट को एक एक्सेस मिल जाएगी ऐप से, जिससे वो अपनी फीस पे कर देगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप रिमोटली सारा काम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर वेबसाइट जो डिजाइन हो रही है, ये पूरा पैनल इसके अंदर फ्री है और डायनेमिक है। इसके अंदर आप डायनेमिकली अपनी वेबसाइट खुद से बना सकते हो और खुद से मेंटेन कर सकते हो। वेबसाइट बनाने में पहले तो आप खर्चा करते हो, अगर चलिए मान लीजिए आपने कर भी लिया, उसके बाद आप उसको अपडेट नहीं करवाते, क्योंकि अपडेट करने के लिए अगेन आपको बार बार खर्चा करना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपने इवेंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है स्कूल से रिलेटेड, वो खुद से कभी भी अपडेट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। और खास बात यह है कि अगेन कोविड की वजह से हम लोग इसके अंदर होस्टिंग कॉस्ट बियर कर रहे हैं। आप सभी लोग जो वेबसाइट के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि वेबसाइट के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक डोमेन, एक होस्टिंग, एक वेबसाइट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग आपकी फ्री हो गई, अपडेशन भी फ्री हो गई, साथ में आपका डोमेन फ्री हो गया, क्योंकि हम इसमें आपको सब डोमेन दे रहे हैं और सब डोमेन बहुत अच्छे हैं। अगर फिर भी आपका अपना डोमेन है या आप अपना डोमेन लेना चाहते हैं तो आप उसके अंदर उसको अलग से परचेज करके इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट ऑल द प्रोविजंस फॉर दैट हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। होस्टिंग इसके अलावा चाहिए होती है, जो कि एक ठीक ठाक कॉस्ट होती है एनुअल रिन्यूअल की, बट वो भी हम इस साल फ्री दे रहे हैं और अगले साल से भी ऑप्शनल होगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं इस वेबसाइट से तो डेफिनेटली आप किसी भी वेबसाइट अगर आप अपनी स्कूल की बनाएंगे तो होस्टिंग आपको देनी ही पड़ेगी, बट यहाँ पे होस्टिंग की कॉस्ट भी आपको बहुत कम पड़ेगी। तो नेक्स्ट ईयर से वो देनी होगी, एक साल, अब एग्जैक्टली आपको एक साल वो कॉस्ट नहीं देनी है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं आपकी जगह, आपको फ्री दे रहे हैं वो होस्टिंग। तो ये भी एक हमारे तरफ से इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट में थी। अब वाणिज्य का जो स्कूल और पेरेंट्स ऐप है, हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देखना कि किस तरह से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सारे 10 पॉइंट्स देखेंगे जिसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो आप वेब से अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है वाणिज्य.biz, आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही इस तरह का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये ट्राई वाणिज्य फॉर फ्री है, ये सिर्फ स्कूल के लिए है। एक बार स्कूल इसके अंदर रजिस्टर कर लेता है तो उसके बाद अगर जैसे हमने कहा 50 स्टाफ के यूजर्स दिए हैं, तो 50 स्टाफ के यूजर्स अंदर से एडमिन क्रिएट करेगा, वो यहाँ से क्रिएट नहीं होंगे। एडमिन के पास राइट है किसको वो यूजर दे, किसको क्या राइट से, तो एडमिन कंप्लीटली क्रिएट करेगा, उसको हम अभी देखेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। बट रजिस्टर कैसे करना है उसको एक बार देख लेते हैं। ट्राई वाणिज्य फॉर फ्री पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप सेम चीज मोबाइल ऐप से कर रहे हैं, मोबाइल ऐप कुछ इस तरह का दिखता है गूगल प्ले स्टोर पे, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा। वाणिज्य हमारा ट्रेडमार्क है, तो नो वन एल्स कैन यूज दिस। तो वाणिज्य के नाम से हमारा ही ऐप है। कुछ और ऐप्स अगर इस पे आ गए हैं तो डेफिनेटली दे आर डूइंग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, तो ऑब्वियसली हमारी लीगल टीम उसको देखेगी। बट वाणिज्य का इस तरह का आपको लोगो आ जाएगा, आप इसको क्लिक करोगे और बहुत ही लाइट वेट ऐप है आपका, इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें भी सेम स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन ओपन हो गया, इसमें आप ईमेल से या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल है।
अगर आप ईमेल से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप एक बार ईमेल डालेंगे, फिर इसको दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए, जिससे कोई गलती आपसे ना रह जाए। अगर आपने गलत ईमेल डाल के रजिस्टर कर लिया तो बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप फिर उसका पासवर्ड या कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे, इवन ओटीपी भी नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं पूरा होगा। फिर पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे। पासवर्ड डालते टाइम आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एक नंबर, एक अल्फाबेट और एक इसके अंदर स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर मतलब जैसे @ एस्ट्रिक, इस तरह का करेक्टर एक दो में से कोई भी एक होना चाहिए। तो इतना कंपलसरी है, ये आपको रखना जरूरी है। तो ये हमने सिक्योरिटी के लिए रखा है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर मोबाइल से रजिस्टर कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर नहीं डालना। उसके बाद आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पे ये जो कोड दिख रहा है इसको आप इनपुट करेंगे। जैसे ही कोड इनपुट कर देंगे ये वाला, वैसे ही नीचे आप दिए गए बटन के ऊपर क्लिक करेंगे रजिस्टर, तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। अगर ईमेल में है तो ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा, अगर मोबाइल से किया है तो मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। मोबाइल के केस में मैं आपको बता दूं कि हो सकता है नेटवर्क में कई बार डिले होता है, वैसे तो हमारी प्रीमियम सर्विस है, ओटीपी इमीडिएटली आपको मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो ये 24 घंटे तक ओटीपी वैलिड रहता है। अगर एक बार आप करते हैं ओटीपी नहीं आता तो डोंट वरी, आप दोबारा से आके सेम ओटीपी को एंटर करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। बस इतना प्रोसेस एक बार आपको करना पड़ेगा। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बोलेगा ओटीपी ऑलरेडी सेंड। तो ओटीपी वहां जो आपके पास आ चुका है, अगर लेट भी आया 24 घंटे के अंदर, तो आप उसको डाल करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ईमेल पे अगर आप करेंगे तो ईमेल में ओटीपी आपके पास 100% जल्दी जाएगा, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं है, बट वहां चला जाता है कुछ अलग अलग फोल्डर्स में। आजकल बहुत सारे फोल्डर्स बन गए ईमेल में। तो उसका एक सिंपल सा टिप आपको देता हूँ। आप टाइप करिए ईमेल के सर्च में वाणिज्य, VANIJYA, इतना टाइप कर दीजिए सर्च में। आपके जो भी आपका ईमेल अकाउंट है तो आपके पास वो ईमेल किसी भी फोल्डर में होगी, तुरंत आ जाएगी। वहां से आप ओटीपी लेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे और आप रजिस्टर कर देंगे। राइट, वंस यू रजिस्टर तो आप तुरंत इमीडिएटली लॉगिन हो जाएंगे, और लॉगिन होते ही आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। अभी रजिस्टर होने के बाद हम सबसे पहली चीज जो करेंगे वो ये देखेंगे कि आप स्टाफ कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टाफ को एक्सेस देनी है, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ को, एडमिन को, और उसके बाद फिर एडमिशन से प्रोसेस स्टार्ट होगा। सिंपल है, स्टाफ क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये मास्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस मास्टर्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ आप एम्प्लॉय मास्टर में चले जाएंगे। एम्प्लॉय मास्टर में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम स्टाफ का जो कंपलसरी है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, बहुत कम चीजें कंपलसरी है, इसलिए आप जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। ये आपका डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। एम्प्लॉय के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं परमानेंट या कंट्रेक्चुअल, आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं, ये भी कंपलसरी है। ज्वाइनिंग डेट डाल देंगे, अगर आप अभी कुछ भी डाल देंगे बाद में अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको अभी नहीं ध्यान है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, आगे आपको डालना है कैटेगरी, क्या कैटेगरी है एम्प्लॉय की। और हाँ, एक चीज स्कूल्स के लिए और है, आपको डेजिग्नेशन उसका सही डालना है। डेजिग्नेशन में टीचर होना चाहिए। अगर डेजिग्नेशन में आप टीचर वर्ड रखते हैं, चाहे म्यूजिक टीचर हो, चाहे क्लास टीचर हो, चाहे और भी कोई वर्ड ऐसा हो जो खाली टीचर हो, वो टीचर होना जरूरी है। अगर आपको इंटरनली उसको अंदर टीचर से रिलेटेड काफी सारी परमिशन देनी पड़ेंगी, जिससे कि टीचर आपका सेक्शन अलॉटमेंट में, क्लास टीचर में आए, तो उसके लिए टीचर वर्ड होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो आपको ये टीचर ऐड करके जो है, अगर इसके अंदर आपको नहीं मिलता है ऐसा कोई डेजिग्नेशन, तो जो भी आप डेजिग्नेशन होगा वो यहाँ से आप ऐड करेंगे। तो यहाँ से जब आप ऐड करेंगे तो उसके अंदर टीचर वर्ड जरूर रखिए। राइट, जैसे टीचर रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह से आप टीचर वर्ड जरूर रखिए, है ना, सब्सटीट्यूट टीचर। तो इस तरह से आप टीचर वर्ड रखेंगे तो वो आपको जहाँ भी टीचर की जरूरत है वहाँ पे वो आ जाएगा, और सिंपल है। उसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय की कैटेगरी एम्प्लॉई है, उसमें आपको चेंज नहीं करना, आप उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो एम्प्लॉय सेव होगा वो आपको यहाँ डिटेल सेक्शन में दिखेगा, यहाँ सारे एम्प्लॉयज दिखेंगे। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को एडिट करना है तो सिंपल आप इस एम्प्लॉय को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिल हो गया, आप इसको अपडेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। राइट, अगर आपको इस एम्प्लॉय को डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बट एक बार अगर एम्प्लॉय ने अपने लॉगिन बना करके लॉगिन कर लिया तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एम्प्लॉय को आपका छोड़ के जाता है तो सिंपल है, आप उसकी यहाँ पे लीविंग डेट डाल देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लीविंग डेट का, तो लीविंग डेट आप डाल देंगे तो सिंपल है। उसके बाद एम्प्लॉय जो है आपका कहीं भी जहाँ जरूरत है उस डेट के बाद नहीं दिखेगा। राइट, खाली यहाँ रिकॉर्ड्स में आपके हमेशा रहेगा। तो एम्प्लॉय क्रिएट होने के बाद दूसरा ऑप्शन है, आपको जाना है टूल्स में। सिंपल नेक्स्ट स्टेप आपका यूजर क्रिएट करने का। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज एम्प्लॉय अलग है, यूजर अलग है। ऐसा हो सकता है आपके पास एम्प्लॉयज हो, उनको आपको यूजर लॉगिन ना देना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूजर लॉगिन हो, कुछ एक्सटर्नल लोगों से आप कुछ काम करा रहे हो जो कि आपके एम्प्लॉय ना हो। तो दोनों ही केस को इसलिए अलग रखा गया है, बट हम इसको रिलेट कर सकते हैं।
यहाँ आप यूजर एड यूजर पे क्लिक करेंगे तो जो एम्प्लॉय, जैसे हमने एक एम्प्लॉय सेव किया तो ये एम्प्लॉय यहाँ दिखने लगेगा, राइट। इसको मैं यहाँ से टिक करूँगा, सिंपल टिक करके नाम आ गया। ईमेल मैंने कुछ भी इसके अंदर डाल दिया, ईमेल जो भी ईमेल या मोबाइल नंबर से जिससे मैं उसका एम्प्लॉय का लॉगिन बनाना चाहता हूँ बनाया, यहाँ पे पासवर्ड डाला और राइट सेलेक्ट करें, राइट्स दे दिए हमने पहले से, राइट्स क्रिएट कर देंगे, अभी राइट्स क्रिएट करना भी देख लेते हैं। और यहाँ पे सेव, एम्प्लॉय सेव हो गया। और जैसे ही सेव होगा यहाँ से ये वाली रो जिसको हमने सेलेक्ट किया है गायब हो जाएगी। यहाँ जिनकी दिखेगी रो वही होंगे जिनके एम्प्लॉयज के लॉगिन नहीं क्रिएटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको सब एम्प्लॉयज के लॉगिन क्रिएट करने हैं, तो ये हो सकता है हमेशा दिखती रहे जिनके आपको लॉगिन नहीं देंगे। इसके बाद जब भी एम्प्लॉय सेव होगा तो यहाँ फिर अगेन डिटेल व्यू में आएगा, हर चीज़ इस प्रोजेक्ट में डिटेल व्यू में आती है। तो आपने देखा यहाँ पे ये एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया कोई भी, तो ये जैसे पहले के क्रिएट किए हैं। अगर एम्प्लॉय कोई छोड़ के जाता है, यूजर आपका बेकार नहीं होगा, आप उसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे। जैसे डीएक्टिवेट करेंगे आपको जो आपके ये वाला यूजर एडिशनल आप बना सकते हो, फिर 50 एक्टिव यूजर्स इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, और अगर आपने गलती से अभी बना दिया तो आप डिलीट कर सकते हो, जब तक इसने एक बार भी लॉगिन नहीं किया है उसके बाद आप डिलीट नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरह से यूजर क्रिएट हो गया। बात आती है राइट्स की, तो ये आप लिंक देख रहे हैं यहाँ पे, ये राइट्स का लिंक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये सारे राइट्स हैं, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर में अभी करेंटली। तो ये सारे राइट्स मिलेंगे, जो राइट्स क्रिएटेड हैं ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये राइट्स आ गए। अगर किसी राइट को एडिट करना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखिए जैसे ही राइट सेलेक्ट होगा, ये इसमें इस नाम राइट का नाम है यूजर। यूजर में देखिए मैंने ये जो ब्लू टिक दिख रहे हैं ये दिए हुए हैं राइट्स। तो हमें कुछ नहीं करना, अगर कुछ चेंज करना है तो सेलेक्ट करना है यहाँ पे और अपडेट कर देना है, सिंपल। सेम अगर आपको कोई राइट बनाना है तो आप यहाँ उसका नाम देंगे और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो देने हैं, और आप इसको सेव कर देंगे। तो ये जैसे हमने अभी क्रिएट किया, डिटेल में जाके देखते हैं, तो ये टेस्ट 5 हमने अभी क्रिएट किया था, सिंपल। तो इस तरीके से आप राइट्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूज़र के अंदर आप यहाँ के राइट को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूज़र एक बार बन गया तो राइट्स चेंज नहीं होंगे, खाली ग्रुप राइट्स आप चेंज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ आपको दिखता है कितने अलाउड यूजर्स हैं, कितने एक्टिव हैं। इन केस ऑफ जो आपका ट्रायल होता है, जो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको खाली एक एडमिन यूजर मिलता है, उसके अंदर आप आराम से सारी फंक्शनलिटी करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ट्रायल के लिए आपको मल्टीपल लॉगिन की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा यूजर क्रिएट करना, जो कि हमारा एक बहुत एसेंशियल स्टेप है इसके अंदर। तो हमारे 2 पॉइंट्स इसमें कवर हो गए हैं। इसके बाद अगली चीज आती है स्टूडेंट एडमिशन। एडमिशन बहुत ही सिंपल है, सिंपल। आप यहाँ एडमिशन देख रहे हैं, इसमें आएंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एडमिशन करने से पहले अपने सब्जेक्ट्स और क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट का नाम देंगे, कोड देना है तो देंगे। ये मार्क्स इनपुट है, मार्क्स इनपुट में मार्क्स आप दे सकते हैं, ग्रेड दे सकते हैं। जो ग्रेड टाइप के सब्जेक्ट है उनके लिए ग्रेड दीजिए, अदरवाइज मार्क्स, और इसको सेव कर देंगे, सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद आप यहाँ डिटेल में आ जाएंगे, जो सब्जेक्ट आपने सेव किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पे आप स्टाफ को सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं। तो आपने जो वहाँ टीचर एम्प्लॉय में डाला था, टीचर डेजिग्नेशन, अगर वो डाला होगा तभी यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ जब लिंकिंग पे क्लिक करेंगे तो इस सब्जेक्ट को कौन से स्टाफ पढ़ाते हैं आप उनको टिक करके सेव कर देंगे, सिंपल। तो आप सेव कर देंगे तो वो सारे टीचर्स उस सब्जेक्ट से लिंक हो जाएंगे, जिनको आप आगे आके भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आपने कुछ गलत डाल दिया तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट का नाम, आप उसको एडिट कर सकते हैं, सिंपल है। सब्जेक्ट एक बार सारे क्रिएट कर लिए जितने भी आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं अलग अलग क्लासेस में। अब आ रही आती है क्लासेस की। ये सारे सब्जेक्ट जो क्रिएट हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लास के नाम भी आपको यहाँ मिल जाएंगे डिफॉल्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये नाम रखेंगे, सेम चीज सब्जेक्ट में भी अप्लाई होती है। नाम जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है आप वो रखेंगे, और उसके अंदर 10 एक बार में आते हैं। अगर आप उसमें टाइप करेंगे पहले 2-3 अल्फाबेट्स तो आपको लगभग सारे सब्जेक्ट्स उसमें मिल जाएंगे। सिमिलरली क्लास का नाम भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसके लिए आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको टाइप करना है। जो भी आप टाइप करेंगे वो नाम आपका क्लास का हो जाएगा। बट इन केस आप नाम अपना रखते हैं तो फिर आपको जो अपलोड है एक्सेल के थ्रू, अभी मैं बताऊंगा, उसके अंदर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्लास सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके काउंट यहाँ दिखेगी और आपने सेव कर दिया, सिंपल। आपकी क्लास सेव होगी। क्लास सेव होने के बाद अगेन डिटेल सेक्शन में आपको यहाँ पे क्लास दिख जाती है, जो भी क्लास आपने सेव की है। देखिए सारी क्लासेस दिख रही हैं हमको। यहाँ से हम अगर इसका क्लास का नाम एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम खाली आएंगे तो हम यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इसका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको नाम चेंज करना है तो उसका ऑप्शन हमने यहीं पे दे दिया है, जो इजी रहे आपके लिए। यहीं एडिट क्लास नेम पे क्लिक करेंगे, पुराना नाम दिखेगा, आप नया नाम एडिट कर देंगे।
यहाँ से आप टाइम स्टाफ को क्लास से लिंक कर सकते हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट को किया था, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टाइम टेबल से रिलेटेड है। टाइम टेबल से रिलेटेड मैं इसमें नहीं बता रहा, टाइम टेबल का मॉड्यूल है वो आप अलग से है, बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। तो सिंपल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर में। तो आपने क्लास भी क्रिएट कर ली, सब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिए। नाउ टर्न कम्स फॉर एडमिशन फॉर्म। प्री एडमिशन के अंदर वो सारी सेव होंगे, जो कि इंक्वायरी आपके यहाँ आती है वो आप सेव कर सकते हो मैनुअली, या फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म से जो भी चीज़ें सेव होंगी वो यहाँ होंगी, और एक सिंगल क्लिक पे वो एडमिशन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन फाइनल कर रहे हो तो आप सिंगल क्लिक करोगे, एडमिशन में खुल जाएंगी, एडमिशन में आप सेव कर दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो डाल दोगे। सिंपल है। एडमिशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। एडमिशन फॉर्म में अंदर एडमिशन डेट, क्लास सेलेक्ट करनी है आपको, जो आपकी बन गई है ऑलरेडी। फर्स्ट नेम देना है। कुछ ही चीज़ इसमें कंपलसरी है, ज़्यादा इसमें कंपलसरी नहीं है, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको देना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पेरेंट्स के लॉगिन के लिए है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर देना है, जो कि पेरेंट्स के ऐप का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों होगा। एक बार जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ देंगे वही आईडी पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड पेरेंट बाकी लॉगिन करके चेंज कर सकता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, अटैचमेंट, फैमिली, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे क्योंकि क्लास से लिंक हो चुके हैं, प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो आपको सूट करे वो आप डालिए, जरूरी नहीं आप सब डालेंगे। और एक बार आप सेव करते हैं तो अगेन यहाँ पे डिटेल में सेव हो जाता है। और यहाँ एडमिशन डेट वही डालिएगा बच्चे का जो करंट सेशन का है। बाद में आप एडिट में उसको पुराना डेट एडिट कर सकते हैं अगर बच्चा, क्योंकि ऑब्वियसली पुराना आपके यहाँ होगा, बट करेंटली सेम एडमिशन डेट या सेशन की डालिएगा, नहीं तो वो पुराने सेशन में एडमिट हो जाएगा, फिर उसको आपको प्रमोट करने का बहुत झंझट हो जाएगा उसमें। तो करंट डेट डालिएगा एडमिशन की। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिटेल सेक्शन में, तो जो बच्चे सेव हो गए इस तरह आपको दिखेंगे। आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, सर्च भी कर सकते हो। लास्ट 10 रिकॉर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली दिखते हैं, आप डिलीट कर सकते हो अगर उस बच्चे का आगे आपने कुछ भी कोई फंक्शनलिटी नहीं की है। अगर एडिट करना है तो सिंपल है, आप स्कॉलर नंबर पे क्लिक करोगे, बच्चा यहाँ फिल हो जाएगा, आप उसको एडिट कर लेंगे, सिंपल। सेम चीज़ यहाँ पे ये बल्क सेव से अगर आपको मल्टीपल सेव करने हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट डाउनलोड होता है, उस फॉर्मेट में सारी वैल्यूज प्रॉपर डालिएगा। जब फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे उसको आप भर लेंगे, जितने बच्चे हैं उसमें फिल कर लेंगे। क्लास वाइज फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे अलग अलग, हर क्लास का एक बनाना पड़ेगा आपको, तो आप क्लास वाइज बना लीजिए उसके अंदर। वैसे आपको क्लास वाइज बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक में भी सारे क्लासेस डाल देंगे तो ईजी रहेगा। बेसिकली होता क्या है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे स्कूल्स को क्लास वाइज अलग अलग शीट बना लेते हैं, वैसे आप एक में भी बना के डाल सकते हैं उसको, राइट। तो उस फॉर्मेट के अंदर आप सब चीज़ें प्रॉपरली फिल करेंगे जैसे उसके अंदर दिया हुआ है जो कंपल्सरी चीज़ें हैं, फिर आप यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव का बटन आ जाएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो नहीं सेव हो रहा है तो उसका एक ही रीज़न है कि डेटा के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, या आपने क्लास क्रिएट नहीं किया है, या फिर सब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, कुछ ना कुछ आपने छोड़ दिया है, या फिर आपका क्लास का नेम डिफरेंट है जो आपने क्रिएट किया है और जो हमने हेल्प में दिया है वो डिफरेंट है। तो उस केस में एक्सेल के अंदर एक शीट है मास्टर, मास्टर में पीछे क्लासेस की लिस्ट दी हुई है, क्लासेस की लिस्ट को आपको जाकर के वहाँ वो क्लास का नाम ऐड करना है जो आपने क्रिएट किया है, जो नाम आपने अभी क्रिएट किया है डिफरेंट है जो कि हमारी लिस्ट से, वो आपको ऐड करना है। तो सिंपल इतना सा आपको इसमें करना है। मैं आपको शीट दिखा देता हूँ जो शीट स्टूडेंट्स की है, और वो मास्टर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। तो ये वो शीट है जो हमने डिफ़ॉल्ट फिल की हुई है, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से मिलेगी। जो ये रेड है ये सारे कंपलसरी हैं। ये स्कॉलर नंबर आपका यूनिक होना चाहिए, आप बार बार दूसरा दूसरा स्कॉलर नंबर मत डालिएगा। एडमिशन डेट फॉर्मेट सही होना चाहिए, ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए। क्लास, ये क्लास है, या क्लास में सिलेक्शन पे आती है, आप इसको टाइप भी कर सकते हो, बट ये सही होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लास्ट में व्हाट्सएप नंबर है जो कि यूज़र आईडी है पेरेंट्स ऐप का। यहाँ मास्टर्स आप देख रहे हैं, इस मास्टर्स में देखिए पीछे डिफाइन किया हुआ है, तो जो हमने अपनी हेल्प में क्लासेस दी हैं वो सब यहाँ डिफाइंड है। अगर आप इसमें कोई नया नाम ऐड करते हैं, आप बोलते हैं क्लास 1 है ना, तो आप इसको क्लास 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप लिस्ट में से नाम नहीं बनाते हैं, कुछ अपना स्पेशल नाम रखते हैं, राइट। और अगर कोई भी चीज़ आपकी मैच नहीं कर रही है, अपडेट नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे जो स्पेलिंग या केस सेंसिटिव होता है, जो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं आप उनको चेक कर लीजिए, वो केसेस आपके सही होने चाहिए जो आप यहाँ पे शीट में वो चीज़ें फिल कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी गलती आप कर रहे हैं तो वो फाइल अपलोड नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेल है तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है, तो इसके अपने कुछ सिस्टम है, कुछ रूल्स हैं। एक्सेल को रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर को एग्जैक्ट चीज़ चाहिए होती है मैच करने, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सेल है, मैंने आपको दिखा दिया। तो हमारा इस तरह से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे। एडमिशन कंप्लीट करने के बाद सिंपल आपको आ जाना है ये पेरेंट्स ऐप पे। तो इस पेरेंट्स ऐप में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जब पेरेंट्स का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, कुछ जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट करी तो इसमें दिखा रहा है 3 इंस्टॉल्स, कौन से बच्चे ने इंस्टॉल किया है।
क्योंकि एक ऐप का जो लॉगिन है वो घर में सारे लोग वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन भी कर सकते हैं। सब पेरेंट्स करना चाहेंगे एक बच्चे का, जिसको भी जो देखना है वो देख ले, तो सब कर सकते हैं। तो जैसे दिखाया है, इस बच्चे के 2 लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है घर में, इसका एक किया, इसका एक किया, 3 का किया है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा किसने नहीं इंस्टॉल किया है, तो आप उनको इंटीमेट कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, इससे आप लिंक शेयर कर सकते हो ऐप का, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज ऐप का लिंक है वाणिज्य पेरेंट कनेक्ट करके, इसका ऐप का लिंक होता है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। तो कुछ इस तरह का ये ऐप दिखेगा, राइट, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं। तो इस तरह का ये ऐप है, ये ऑरेंज कलर का लोगो है इसका। तो ये ऐप है, तो ये ऐप आप पेरेंट्स को बता सकते हैं इजीली। इसका लिंक आप यहाँ से भी लेके भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी इसका लिंक आ जाता है। लिंक के साथ एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका मोबाइल नंबर ये है और पासवर्ड भी ये है, और आप ये लिंक है ऐप डाउनलोड का। तो इस तरह से इस पर आ जाता है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल के व्हाट्सएप से आप मैसेज भेज सकते हैं, नहीं तो आप जैसा चाहें ये लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा पेरेंट्स ऐप, हो गया हमारा, एडमिशन भी हो गया। तो आप एक्सेस कर सकते हो ऐप जो है पेरेंट्स स्टूडेंट्स वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको वेबसाइट के साथ दिखा दूंगा, एक बार मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फीस डिपॉजिट का मैकेनिज्म, कैसे आप इसके अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे है रेजर पे का, आप कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में भी मिल जाएगा, ये इसमें एक ऑप्शन है बैंकिंग। जब आप बैंकिंग ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पेमेंट गेटवे है, इसमें सिंपल आपसे वो नाम पूछेगा, आप स्कूल का नाम डाल देंगे, स्कूल का ईमेल आईडी डाल देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद वो एक बैकएंड टीम है रेजर पे की, उनके पास पहुंच जाएगा, वो उसको एक मर्चेंट अकाउंट आपका रेजर पे की टीम क्रिएट कर देगी और आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, इसी ईमेल पे विद इन 24 आवर्स। उस ईमेल पे जाकर के आपको अपने अकाउंट के अंदर जो भी डिटेल्स आपके स्कूल की हैं, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, वो डालना है, और अपना जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, किसी भी बैंक में हो सकता है वो, एनी बैंक इन इंडिया, तो वो बैंक अकाउंट आपको वहां से लिंक कर देना है। एक बार आपका लिंक हो गया तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इनफैक्ट जैसे ही आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि एक्टिवेटेड, तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद जो है पेरेंट्स से आप फीस ले सकते हैं, आप पेरेंट्स को लिंक भी भेज सकते हैं, कोई एडिशनल फीस है, किसी इवेंट की फीस है, या आप किसी और से भी अगर कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो उसको भी आप लिंक भेज सकते हो। बड़ा सिंपल है पेमेंट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे, है ना। तो पेमेंट लिंक के अंदर जैसे मुझे कोई अदर इवेंट का फीस लेना है, मैंने बोला ये सेशन है और ये बच्चे हैं 5th क्लास में, तो इनसे मेरे को लेना है, जैसे मुझे मान लीजिए 300 रुपये लेने हैं, 3000 रुपये लेने हैं, और कोई इवेंट है और मैंने सर्च किया, तो ये सारे बच्चे ओपन होकर आ जाएंगे। जिस जिसको मुझे वो लिंक भेजना है मैं उनको टिक कर दूंगा और यहाँ से क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा वैसे ही नीचे आपको सारे लिंक्स क्रिएट होकर दिख जाएंगे, ये सारे देखिए लिंक्स। ये लिंक आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, यहाँ अगेन व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया है, कॉपी का ऑप्शन दिया, आप कॉपी करके भी उनको भेज सकते हो। अदरवाइज जो आप अदर फीस लोगे, इसके जो लिंक्स क्रिएट होंगे ये ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के ऐप में नजर आने लग जाएंगे। रेगुलर फीस तो ऑटोमेटिक नजर आएगी जब आप फीस डिक्लेयर कर देंगे, तो फीस का सेपरेट मॉड्यूल है, आप जब उसको उसके अंदर फीस सारी डिफाइन कर देंगे, सब बता देंगे एडजस्ट, तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, वहां से वो पेमेंट कर सकते हैं। जो अदर देन रेगुलर फीस है वो भी यहाँ से इजीली पे हो सकती है। और अगर आप मान लीजिए किसी और से आपको पेमेंट लेना है अदर देन स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ उसका नाम, अमाउंट, लिंक यहाँ पे रिमार्क में कुछ भी इनपुट कर देंगे तो उसका भी आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा, वो लिंक भी आप उससे ले सकते हो। मतलब आप इससे स्टूडेंट से पेमेंट ले सकते हो या किसी और से भी पेमेंट इजीली ले सकते हो। तो इस तरह से आप इससे फीस पेमेंट ले सकते हो। इसके बाद बारी आती है बहुत जरूरी चीज, जो कि लाइव ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना है। उसके अंदर हम एक ऑप्शन और लेके आ रहे हैं, बट ये ई लर्निंग ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, इस ई लर्निंग ऑप्शन से होता है, यहाँ पे आता है लाइव क्लास सेटअप। हम इसमें और भी काफी सारे फीचर्स ऐड करने हैं जल्दी जो कि आ रहे हैं। तो इसके अंदर लाइव क्लास सेटअप अभी यूट्यूब के थ्रू है, यूट्यूब लाइव से आप लाइव जा सकते हो। अदरवाइज आपने कोई रिकॉर्डिंग डाली है तो वो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप सेशन का टाइटल डालोगे, कोई सब्जेक्ट अगर है स्पेसिफिक, ऑप्शनल है, तो आप सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेशन की डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और यूट्यूब का लिंक। तो रिकॉर्डेड सेशन आप उसका डाल सकते हो। सिमिलरली यहीं पे आपका जो लाइव सेशन क्रिएट होता है यूट्यूब में, आप उसको एडवांस में शेड्यूल कर सकते हो। आने वाले दिनों के आप यूट्यूब में जाकर के लाइव सेशंस क्रिएट करके छोड़ सकते हो, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाता है अगेन यूट्यूब का, तो वो लिंक आप यहाँ ला करके टाइम डेट डाल के शेड्यूल कर सकते हो। वैसे ही बच्चे को जो आप सेशन अगर रिकॉर्डेड भी डालोगे तो वो लाइव ही दिखेगा, क्योंकि उसके स्क्रीन पे लाइव आएगा, और यूट्यूब पे जाके वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहां पे आपको उसको रखना है अनलिस्टेड। जब अनलिस्टेड रखोगे तो ना तो यूट्यूब की सर्च में आता है, ना आपके चैनल पे वो वीडियो दिखता है, कोई भी उस वीडियो को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप ये लिंक उससे शेयर ना कर दो। तो लिंक आप इससे शेयर नहीं करोगे, जो भी टीचर है जिसको लॉगिन मिलेगा वो अपना यहाँ पे आएगी, अपना क्लास सेलेक्ट करेगी, सेशन टाइटल, सब्जेक्ट, सेशन डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यूट्यूब का लिंक डालेगी। अगर रिकॉर्डेड सेशन डाल रहे हैं, जो कि काफी सारे स्कूल्स कर रहे हैं,
तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रिकॉर्डेड सेशन डाल दीजिए, बच्चे को उसी तरह से दिखेगा और स्टाफ के पास जो भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो आ जाएंगे, वो क्वेश्चंस उनको यहाँ पे दिखेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है ऑप्शन, जब क्वेश्चन होते हैं तब यहाँ ऑप्शन दिखता है, क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिखता है, और कितने बच्चों ने वो सेशन देखा ये भी वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके पता चल जाएगा। जो ग्रीन होंगे बच्चे उन्होंने किया है, आप मोबाइल में उनको इंटीमेट भी कर सकते हो पेरेंट्स को कि वो बच्चा सेशन नहीं कर रहा है। तो ये सारे फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। कोई सेशन अगर आपने बनाया डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपका टोटल सेशन क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद पेरेंट को ऐप में वो दिखने लगेगा, राइट। और इसी के अंदर हम ऑप्शन लेके आएंगे लाइव जो इंटरेक्टिव सेशन है उसका भी, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। बट अभी आप यूट्यूब से भी ये चीज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। यूट्यूब लाइव पे जाकर के किस तरह से होता है उसके लिए कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, किस तरह से लाइव जाना है, तो वीडियो आप एक्सेस कर लीजिए जाकर के, उसमें आपको मिल जाएगा। ये वीडियोस आप यहाँ हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो, नीचे हेल्प है, हेल्प में आप जाकर के टाइप करोगे तो आपको यहाँ से वीडियो एक्सेस हो जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ जाकर के आप टाइप करोगे लाइव, है ना, तो लाइव ऑनलाइन क्लास का पूरा वीडियो आ जाएगा। तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, ये सब उसमें भी है, बट और भी चीज़ें इसके अंदर है कवर होती हैं। आपको कोई भी समस्या है तो आप यहाँ सपोर्ट से जाकर के एक सपोर्ट टिकट क्रिएट कर देंगे। सपोर्ट टिकट क्रिएट होने के बाद जब भी आपके पास रिप्लाई आएगा वो इसी पे आएगा, तो ये माई टिकट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो रिप्लाई। तो इस तरीके से आपको वो रिप्लाई मिल जाएगा, तो आप इस तरह से उसका रिप्लाई भी देख सकते हो, आप उसके अंदर फर्दर करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो, ठीक है, जब तक वो टिकट क्लोज नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लाइव ऑनलाइन क्लास इसके ऊपर कंडक्ट कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है कि होमवर्क कैसे एलोकेट किया जाता है। तो सिंपल है, आप आ जाओगे यहाँ पे टूल्स में, टूल्स के अंदर ऑप्शन होता है इसके अंदर नीचे होमवर्क मैसेजेस एंड नोटिस का, आप उस पर क्लिक कर दोगे और सिंपल है, यहाँ पे आपको होमवर्क देना है जो कि बहुत आसान तरीके से इसके अंदर दिया गया है। आप क्लास सेलेक्ट करोगे, सेक्शन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो, होमवर्क की डेट कंपलसरी है। इसके बाद अगर ये वेकेशन से रिलेटेड हो होमवर्क है, जैसे विंटर वेकेशन या कुछ हो गया, तो आप यहाँ से वेकेशन क्रिएट कर सकते हो, नहीं है तो आप इसको छोड़ दोगे। आप मैं होमवर्क यहाँ पे वर्ड में आपने बनाया है तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो यहीं टाइप करके सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन से फॉर्मेट कर सकते हो। कोई अटैचमेंट भेजना है तो यहाँ से आप अटैचमेंट भेज सकते हो, 3 MB तक का PDF या इमेज, तो आप यहाँ से अटैचमेंट भेज सकते हो बहुत आसानी से। तो अटैचमेंट बच्चे के पास चला जाएगा, वो ओपन करके उसको भी देख लेगा, साथ में आपने जो टाइप किया वो भी उसको नजर आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद अगेन डिटेल सेक्शन में जो भी आपने होमवर्क सेव किए वो आपको दिखेंगे। जैसे हमें कोई देख लेते हैं, ऑलरेडी सेव्ड होमवर्क्स होंगे। क्लास सेलेक्ट की मैंने 5, तो आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट डेट होमवर्क क्या था, उसका कुछ कंटेंट आएगा, सारा नहीं आएगा। होमवर्क सबमिटेड, अगर किसी बच्चे ने होमवर्क सबमिट किया है, जैसे किसी का देख लेते हैं, तो यहाँ होमवर्क सबमिटेड पे आप क्लिक करोगे तो राइट यहाँ आ गया, देखिए होमवर्क सबमिट पे क्लिक किया, 2 बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया, यहाँ से टीचर डाउनलोड कर लेगी, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि डाउनलोड के फाइल का नाम बहुत अच्छा है, क्लास का नाम, सब्जेक्ट जिसका होमवर्क है, बच्चे का नाम और डेट, सारी चीज़ें मिला जुला के वो नाम बनता है। तो उसके अंदर वो बिल्कुल सेपरेट नाम बनेगा और टीचर उसको सेव करके रख सकती है, उस पर जो भी करेक्शन करने हैं करके, और जो भी अपना रिजल्ट बनाना है रिजल्ट बना सकती है। तो इस तरह से होमवर्क दिया जा सकता है बहुत आसानी से। और अभी हम पेरेंट्स ऐप में भी चल के देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर किस तरह से दिखेगा। सपोर्ट और हेल्प में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मैं आपको रिचार्ज बता देता हूँ, रिचार्ज किस तरह से आप कर सकते हो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ नीचे क्लिक टू रिचार्ज आपको दिख रहा है, क्लिक टू रिचार्ज पे जाकर के यहाँ पे सारी चीज़ें ये दिखाता है ट्रांसपेरेंटली, जो भी इसके प्राइसिंग है, प्राइसिंग इसकी वेबसाइट पे भी दिखा रहा है। तो ये इसका एक मेन प्लान है। यहाँ आप रिन्यू प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, क्लिक टू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म ऑर्डर करेंगे, और फिर आप इसको ऑनलाइन या चेक नेफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ दी है। इसका एक कंप्लीट डिटेल सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो आप रेफर कर लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि पर स्टूडेंट चार्जेस हैं 250 के ऊपर, अगर आपके स्टूडेंट 250 से ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है 8 रुपये से आप बाकियों को इंटू कर देंगे, तो वो उसके अंदर बताया गया है। तो इस तरह से आप रिचार्ज कर सकते हो। फाइनल एक क्विक टूर और कर लेते हैं, बची हुई चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्कूल ऑप्शन है, स्कूल ऑप्शन में आपको अटेंडेंस, टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है फीस का मॉड्यूल। जैसे मैंने बताया, फीस हेड डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उन हेड में कितने कितने अमाउंट आप किस किस क्लास के लिए रख रहे हो वो आपको डिफाइन करना है। फिर फी एलोकेट हो जाएगी बच्चों को, तो बस उसके बाद फी ले ली जाएगी यहाँ से आराम से। जब ऐप से आ रही होगी तो सिर्फ यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, जिन बच्चों ने फीस जमा की है उसको सिर्फ एक क्लिक करना है, वेरीफाई करके सेव करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से फीस की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, सारी रिपोर्ट्स जो भी स्कूल से रिलेटेड है वो रिलेटेड सेक्शन के अंदर ही दी गई हैं। एडमिशन की एडमिशन में, स्कूल में टाइम टेबल, अटेंडेंस की, फी में फीस की। इसी तरह एग्जाम है, एग्जाम में आप बना सकते हो। बैंकिंग में आपको बता चुका हूँ, बैंक कैश से आप जो भी बैंक और कैश की जो एंट्रीज हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड वो कर सकते हो। एक्सपेंस में एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हो।
मास्टर्स में आपको दिखा चुका हूँ एम्प्लॉय मास्टर, उसके अलावा भी आप मास्टर बना सकते हो, सप्लायर, या आपको कोई प्रोडक्ट स्कूल के लिए परचेज करते हो। रिपोर्ट्स मिल जाएंगी फाइनेंशियल या फिर जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो इसके अंदर। परचेज एंट्री कर सकते हो, कुछ आप स्कूल के लिए परचेज करते हो, कोई अदर इनकम आती है स्कूल के लिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। जर्नल अकाउंट्स वालों के लिए डेबिट क्रेडिट का मोड इसमें दिया गया, अगर इसकी आपको जरूरत पड़ती है या आपके अकाउंटेंट या सीए को जरूरत पड़ती है। पेरोल है फाइनल, जो आपके स्टाफ है उनके लिए। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, अटेंडेंस और आपका सैलरी जनरेट करना, लीव, सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। वेबसाइट के ऊपर जो भी फीडबैक्स आएंगे वो इस तरीके से यहाँ पे इस वेबसाइट में यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अभी वेबसाइट देख लेते हैं कैसे दिखें। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है कि बच्चे ने फीस नहीं जमा करी है तो क्या हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस कुछ भी ना देख पाए। तो बिल्कुल उसका ऑप्शन है इसके अंदर, और वो ऑप्शन यहाँ पे नीचे स्कूल पैनल में है। स्कूल पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो ये फी ड्यू आती है, फी ड्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्लॉक सेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो भी बच्चे हैं जिनकी फीस ड्यू है वो दिखेंगे। आप यहाँ पे ब्लॉक पे टिक करेंगे उस बच्चे के सामने और सेव कर देंगे, तो बच्चा ब्लॉक हो जाएगा, उसको जो है वो नहीं दिखेगा अपना जो भी लाइव सेशन है। ऐप जरूर एक्सेस कर पाएगा, सिर्फ लाइव सेशन वाला डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब आप उसको अनब्लॉक कर देंगे तो वो उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर ये ऑप्शन है ऑलरेडी। तो इस तरह से स्कूल की वेबसाइट है, ये कुछ हमने डमी डेटा डाला हुआ है। जैसे आप कोई भी स्कूल पे आके इसमें इंक्वायरी करेगा तो इंक्वायरी फॉर्म भरेगा तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इसमें वेबसाइट फीडबैक में मिल जाएंगी। उसके अलावा देखिए इसमें आप इवेंट्स डायनेमिक होंगे आपके, आप इसके अंदर अपने स्टाफ की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो जो कि एम्प्लॉय मास्टर से आएगी। डायनेमिक टीसी इसमें डायनेमिकली दिखेगी। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इसके अंदर ओपन हो जाता है, पेरेंट इसी के अंदर से ऑनलाइन एडमिशन सबमिट कर सकता है। फिर ये पेरेंट्स लॉगिन जिसकी हम बात कर रहे थे इसको हम देख लेते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना हुआ है, तो आप उस वेबसाइट रिलेटेड वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। तो पेरेंट्स लॉगिन आपका कस्टमाइजेबल है, इसके अंदर जो भी आप अपना लोगो डालेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे वो लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल जो ऐप है पेरेंट्स कनेक्ट का उससे रिलेटेड है, बट ऐप कस्टमाइज नहीं हो सकता। ऐप के लिए अगर आपको कस्टमाइज कराना है तो हम सेपरेटली करके देंगे, और उसकी कुछ कॉस्ट आती है जो कि गूगल लेता है, या हम आपके लिए पूरा सा ऐप आपके हिसाब से सेटअप करते हैं। तो वो पूरा कन्फिगर करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तो उसकी एक वन टाइम कॉस्ट और ऐप के सर्वर से रिलेटेड रिकरिंग कॉस्ट है। तो एडिशनल अगर आप स्पेशली चाह रहे हो तो, अदरवाइज आपका वो जो ऐप हमने डिफॉल्ट डाला है वो आपका चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो फ्री है हमारी तरफ से, राइट। तो यहाँ से जो होगा ये आपका कस्टमाइज होगा। जैसे ये येलो कलर दिख रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हो, ये लोगो भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये कलर आपका चेंज हो जाता है यहाँ बिल्ड माई ब्रांड में। जब हम आते हैं तो यहाँ वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट में जाने के बाद जो है ये आपका चेंज हो जाता है। इसमें ऑप्शन है एक फैकल्टी से रिलेटेड, नीचे आएंगे हम तो यहाँ फैकल्टी पेरेंट्स ऐप है, इसमें आप ये देख रहे हैं येलो कलर, यहाँ से आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो अब इसको हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कलर इसका चेंज हो जाएगा। कलर हमारा चेंज हो गया जो हमने चाहा था। स्कूल का नाम भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल स्कूल का ब्रांडेड दिखता है। अब इसके अंदर हम लॉगिन करके देख लेते हैं इसको। तो पेरेंट्स ऐप है बिल्कुल ऐसा ही ऐप में दिखता है। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं किसी के पढ़ रहे हैं जिनमें सेम नंबर डाला है व्हाट्सएप वाला, तो ये 3 बच्चे इस तरह से अलग दिखेंगे, उनकी फ़ोटो दिखेगी। जिस बच्चे को सेलेक्ट करेंगे उसका आ जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट ही आ जाएगा। प्रोफाइल दिखेगी बच्चे की, एग्जाम रिजल्ट, एग्जाम स्कीम, अटेंडेंस, फीस पे कर सकते हैं यहाँ से। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फीस दिखेगी, क्योंकि ये वेब है इस पर पे बटन नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ऐप से वो फीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट जरूर उसकी ले पाएंगे, राइट, जब रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। होमवर्क यहाँ पे दिखेगा बच्चे को। फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं कोई होमवर्क, देखिए इस तरह से टेस्टिंग होमवर्क है, हमने टेस्ट के लिए डाला था। यहाँ से वो अटैचमेंट डाउनलोड कर लेगा और यहाँ से बच्चा रिप्लाई के लिए अटैच कर देगा। जो भी उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा उसका वो स्कैन करके डालेगा। नोटिस स्कूल को देता है, यहाँ से होंगे। लाइव सेशन यहाँ से बच्चा देख सकता है। अभी कोई सेशन लाइव नहीं है, अदरवाइज यहाँ लाइव दिख रहा होता। अपकमिंग के अंदर भी अभी कोई नहीं है तो अपकमिंग दिख रहे होते। प्रीवियस में जरूर होंगे क्योंकि कुछ डमी हमने डाले होंगे तो प्रीवियस में होंगे। वहाँ पे हमने अभी सेव नहीं किया लाइव, अदरवाइज यहाँ पे दिख जाता। प्रीवियस में ये सारे सेशन देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनको यहाँ से सर्च भी किया जा सकता है अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे, सब्जेक्ट के बेसिस पे और टाइटल के बेसिस पे। बहुत ईजी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कंप्लीट हमारा पेरेंट्स ऐप। इसमें यहाँ से पासवर्ड चेंज होता है, यहाँ से लॉग आउट हो जाता है, और यहाँ नोटिफिकेशन आती है अगर कोई नया होमवर्क आया है, कुछ भी आया है, तो इस तरह से देखिए
यू हैव न्यू होमवर्क इन इंग्लिश स्पेशल। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगी स्टाफ के पास, उसको पता चल जाएगा कि कौन सा होमवर्क अभी नया आया हुआ है, ठीक है, या और भी कोई नोटिस आया है, और सारी चीज़ें इस पर नोटिफिकेशन आ जाती हैं। तो इस तरह से इस ऐप का सारा जो भी इस वेबिनार में मैंने आपको बता दिया है, क्या इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है, सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं।